ان دونوں ایمپائرز نے مل کر مسلمانوں کے خلاف اپنی اپنی ایمپائرز میں بہت بڑی فوج جمع کرنا شروع کر. السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. میرا نام ہے اعزاز الحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں جیزی ریئیکشن. آج ہم جس ویڈیو کو ریئیکشن کرنے جا رہے ہیں وہ ہے دا کوہستانی چینل کی، اور ویڈیو ہے جنگ یرموک کے حوالے سے. جنگ یرموک جو کہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان لڑی گئی تھی اور بہت ہی خطرناک اور بہت ہی مشکل قسم کی جنگ تھی. تو چلتے ہیں اور سنتے ہیں جنگ یرموک کی کہانی. جنگ یرموک مسلمانوں کی تاریخ کی سب سے بڑی اور سب سے فیمس جنگ، جس میں ایک طرف رومن امپائر اپنی فل طاقت کے ساتھ 2 لاکھ کی فوج لے کر کھڑی تھی، اور دوسری طرف مسلمان خالد بن ولید کی لیڈرشپ میں صرف 30,000 مسلمانوں کے ساتھ کھڑے تھے. اور ویٹ، خالد بن ولید کو تو اس جنگ سے پہلے ہی آرمی چیف کے عہدے سے ہٹا دیا گیا، تو پھر وہ اس جنگ کے لیڈر آخر بنے کیسے؟ اس جنگ کی سٹوری، جنگ یرموک کی سٹوری بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے. مسلمانوں نے پہلے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس وقت کی سپر پاورز رومن اور پرشین امپائر سے ہڈا لے لیا، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو مسلمان خالد بن ولید کی لیڈرشپ میں ان دونوں امپائر سے یہ سارا علاقہ فتح کر چکے. لیکن جیسے ہی حضرت عمر خلیفہ بنے، انہوں نے خالد بن ولید کو ان کی پوزیشن آرمی چیف کے عہدے سے ہٹا دیا، جسے ہم اس ویڈیو میں ایکسپلین کر چکے، اور ان کی جگہ ابو عبیدہ ابن جراح کو مسلمانوں کا نیا آرمی چیف بنایا. ناؤ خالد بن ولید کے زمانے میں مسلمان ڈمیسکس جیسی بڑی سٹی کو فتح کر چکے. یہ اتنی بڑی سٹی تھی کہ یہ آج تک سیریا، شام کا کیپٹل ہے. تو ابو عبیدہ ابن جراح کی لیڈرشپ میں مسلمان اس سٹی سے بھی آگے بڑھے اور رومن امپائر کی ایک دوسری بہت ہی امپورٹنٹ سٹی تک پہنچے، امیسا، جسے آج ہومز کہا جاتا ہے. امیسا کوئی عام سٹی نہیں تھی، اس کی لمبی لمبی دیواریں تھیں، اور ان دیواروں کے سامنے ایک بہت بڑی نہر بنائی گئی تاکہ کوئی اس سٹی کے دیواروں تک نہ پہنچ سکے. ابو عبیدہ کی لیڈرشپ میں مسلمانوں نے اس سٹی کو چاروں طرف سے گھیر لی. لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ جب مسلمان اس سٹی تک پہنچے تو یہ دسمبر کی سخت سردی کا موسم تھا، اور یہاں بہت زیادہ برف باری ہو رہی، اور مسلمان تو سارے عرب کے گرم ڈیزرٹ سے آئے، تو وہ اس سردی کو برداشت نہیں کر سکتے. کافی عرصہ گزرنے کے بعد مسلمان اس سٹی کو فتح نہیں کر سکتے، اور آخر ایک دن مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہم اور تھک گئے، تو وہ اس سٹی کو چھوڑ کر واپس جانے لگے. یہ تاریخ میں پہلی دفعہ تھا کہ مسلمان کسی جنگ کو چھوڑ کر واپس جا رہے. یہ دیکھ کر امیسا کا جنرل اور عوام بہت خوش ہوئی اور کہنے لگے کہ ہمیں پتا تھا یہ عرب اس سردی کو برداشت نہیں کر پائیں. تو اس سٹی کے جنرل نے اپنی فوج کو مسلمانوں پر حملے کا حکم دیا تاکہ مسلمانوں کو یہاں سے جلدی بھگا سکے، جس کی وجہ سے اس کی فوج قلعے سے باہر نکل آئے اور مسلمانوں کا پیچھا کرنے لگی. جیسے یہ فوج اپنے قلعے کے توپوں اور تیروں کی رینج سے باہر نکلی تو مسلمانوں کی فوج اچانک رک گئی اور ان پر حملہ کر دیا، اور ایٹ دا سیم ٹائم مسلمانوں کی ان 2 فوجوں نے بھی آ کر اس فوج پر حملہ کر دیا، اور اس طرح یہ ساری فوج ختم ہو گئی اور ان کا جنرل مارا گیا. مسلمانوں کی آرمی کی اس زبردست پلاننگ کو دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ ضرور یہ خالد بن ولید کا ہی مشورہ ہو. ابو عبیدہ مسلمانوں کی فوج لے کر واپس سٹی کے پاس آئے. امیسا کے لوگ جو اب تک بہت خوش تھے، یہ دیکھ کر ان کا سارا حوصلہ ٹوٹ گیا، اور انہوں نے سٹی کی گیٹس کھول کر ابو عبیدہ کے سامنے سرنڈر کر دیا. ناؤ اب فائنلی ٹائم آ چکا کہ مسلمان شام، سیریا سے نکل کر رومن امپائر کی کیپٹل ترکی میں کانسٹینٹینوپل، جسے آج استنبول کہا جاتا ہے، اس کی طرف بڑھتے. لیکن اچانک ایک میسنجر مسلمانوں کی کیپٹل مدینہ سے خلیفہ عمر بن خطاب کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ لیٹر لے کر فل سپیڈ مدینہ سے امیسا کی طرف پہنچا، اور اس میسنجر نے سیدھا جا کر یہ لیٹر ابو عبیدہ تک پہنچایا. اس لیٹر میں بہت ہی ایک عجیب بات لکھی تھی. اس میں لکھا تھا کہ بس اس سے آگے مسلمانوں کی فوج کو بڑھنے کی اجازت نہیں، اور یہ کلیئرلی لکھا ہوا تھا کہ امیسا کے بعد کوئی بھی دوسرا علاقہ فتح نہیں کرنا. اینڈ آف کورس ابو عبیدہ اور مسلمانوں کی ساری فوج نے حضرت عمر کے ان آرڈرز کو بغیر کسی کوشچن کے مان لی. لیکن اب حضرت عمر کے اس آرڈر سے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کی فوج کی سپیڈ، جو اس سے پہلے ہی خالد بن ولید کے ہٹانے سے بہت ہی سلو ہو چکی تھی، اب آلموسٹ ختم ہو گئی. اور اتنی سلو ہوئی کہ اس میپ کو دیکھیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پہلے اپنی صرف 2 سال کی خلافت مدینہ سے ڈمیسکس تک یہ اتنا بڑا علاقہ فتح کیا تھا. لیکن اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے 2 سالوں میں مسلمان ڈمیسکس سے صرف اتنا ہی آگے جا پائے. لیکن اب کوشچن یہ تھا
कि हजरत उमर आखिर क्यों मुसलमानों को आगे बढ़ने से रोक रहे थे, क्योंकि हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को लीडरशिप की ट्रेनिंग खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी एक जमाने में मक्का वालों ने ऑफर दी और वो ऑफर ये थी कि हम आपको मक्का का बादशाह बना देंगे अगर आप अपने खुदा के साथ साथ हमारे खुदाओं को भी सही करें। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आसानी का रास्ता अपनाने के बजाय इस ऑफर को ठुकरा दिया और कई साल तक मक्का वालों के जुल्मों को बर्दाश्त करते रहे। इसी तरह हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भी पता था कि मुसलमानों के इन हर तरफ हमलों से मुसलमानों की ये एम्पायर तो बहुत फैल जाएगी और वो खुद बहुत बड़े बादशाह तो बन जाएंगे, लेकिन इससे इस्लाम को कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि अगर आज देखा जाए तो पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट 2 बिलियन मुसलमान, लेकिन 2 बिलियन होने के बाद भी मुसलमानों की आज कोई हैसियत नहीं है। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु चाहते थे कि चाहे मुसलमान नंबर्स में कम भी हो लेकिन सच्चे मुसलमान, मतलब हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपनी हुकूमत से ज्यादा इस्लाम की फिक्र थी। तो उन्होंने दोबारा हजरत अबू उबैदा की तरफ एक लेटर भेजा जिसका मफहूम ये था कि अब तुम सिर्फ एक आर्मी चीफ नहीं बल्कि पूरे शाम के गवर्नर और पहले इस्लामिक लीडर हो, तो अब सिर्फ जंगों से ज्यादा लोगों को इस्लाम सिखाओ। और यहीं से पहली बार अरब से बाहर लोग इस्लाम के सिस्टम को जानने लगे। इससे पहले हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में मुसलमान इतनी टेंस सिचुएशन में कि उन्हें इन नए इलाकों में इस्लामिक निजाम कायम करने का टाइम नहीं मिला। तो अब हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पहली बार दुनिया के सामने एक नया सिस्टम रखा, खिलाफत का सिस्टम। और हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बहुत सोच समझ के हजरत अबू उबैदा को इस काम के लिए चूज किया, क्योंकि अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस्लाम के पहले 10 मुसलमानों में से और इस्लाम लाने के बाद वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर डिसीजन में उनके साथ शामिल थे और इस्लाम के साथ इतने लॉयल थे कि जब जंग बदर में मुसलमान और काफिर एक दूसरे के सामने हुए तो अबू उबैदा के वालिद दुश्मनों की फौज में थे और फिर जब जंग शुरू हुई तो अबू उबैदा के वालिद उन्हीं के हाथों से मारे गए, जिसके बाद इनकी इस्लाम के साथ कमिटमेंट पर किसी को कोई शक नहीं। इसीलिए हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खालिद बिन वलीद को हटाकर इन्हें मुसलमानों का नया लीडर बनाया, क्योंकि अब जंग से ज्यादा एक ऐसे लीडर की जरूरत जो लोगों को इस्लाम का असल मकसद सिखा सके। तो हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूरे शाम को छोटे हिस्सों में डिवाइड करके यहाँ के नए गवर्नर्स लगाए और खुद सबसे फ्रंट वाली सिटी एमेसा में अपना नया हेडक्वार्टर बनाया, ताकि अगर मुसलमानों को कोई भी खतरा हो तो सबसे पहले इनको पता चले। और अपने राइट हैंड खालिद बिन वलीद को शाम के असल कैपिटल दमिश्क का गवर्नर बनाया और आमिर इब्न आस को उर्दन जॉर्डन का गवर्नर लगाया और इन इलाकों में बिल्कुल इस्लाम के सिस्टम के मुताबिक ज़कात और जिज़िये का सिस्टम राइज किया। इस्लामिक कोर्ट्स और अदालतें भी बनाई और इवन एक पुलिस का सिस्टम भी बनाया और सबके सामने यहाँ के ताकतवर लोगों को उनकी पोजीशन से हटाकर आम लोगों की तरह उनको सजाएं दी। ये सब जब रोमन एम्पायर की अवाम ने देखा तो वो हैरान हुए कि ये लोग तो हमारी पिछली हुकूमत से बहुत बेहतर है। आखिर 1 साल से भी ज्यादा अरसा गुजर गया और मुसलमानों ने एमेसा के बाद और कोई भी सिटी फतह नहीं बल्कि इस टाइम को यूज करके अपने इस एम्पायर को मजबूत करने की कोशिश की। लेकिन इस सारे टाइम से ऑलमोस्ट 1 साल से रोमन एम्पायर के बादशाह को भी टाइम मिला कि वो मुसलमानों के खिलाफ एक बहुत बड़ी फौज बना सके। लेकिन अब रोमन एम्पायर इतनी कमजोर हो चुकी कि मजबूरन रोमन एम्पायर के बादशाह हरकल हेराक्लियस ने एक ऐसा काम किया जो इससे पहले सोचना भी इम्पॉसिबल था। हुआ यूं कि रोमन एम्पायर के बादशाह हरकल ने पर्शियन एम्पायर के बादशाह की तरफ पहली बार दोस्ती का हाथ बढ़ाया और सिर्फ यही नहीं बल्कि अपनी पोती की शादी भी पर्शियन एम्पायर के बादशाह से कर। और इस तरह तारीख में पहली बार रोमन और पर्शियन एम्पायर सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि रिश्तेदार बन गए। ये बहुत ही इम्पॉसिबल बात, क्योंकि इससे पहले रोमन और पर्शियन एम्पायर पिछले 800 साल से एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन थे। लेकिन अब इन दोनों एम्पायर्स मुसलमानों का इतना खौफ बैठ चुका था कि इन्होंने पिछले 800 साल की दुश्मनी भुलाकर एक दूसरे के साथ दोस्ती कर ली। ये ऐसा ही था जैसे आज पाकिस्तान और इंडिया किसी और के खिलाफ एक हो जाए, और इवन वर्स फलस्तीन और इजराइल किसी दूसरे के खिलाफ एक दूसरे के दोस्त बन जाए, जो इम्पॉसिबल। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत मुसलमानों के खौफ ने इन्हें एक होने पर मजबूर कर दी। तो अब इन दोनों एम्पायर्स ने मिलकर मुसलमानों के खिलाफ अपनी अपनी एम्पायर्स में बहुत बड़ी फौज जमा करना शुरू कर, जिसके बाद जंगे यरमुक और जंगे कादसिया जैसी अजीम जंगे लड़ी गई। रोमन बादशाह ने अंताकिया में अपने सारे जनरल्स की एक मीटिंग बुलाई, जिसमें उसने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि आखिर क्या वजह है कि हम इन मुसलमानों से नंबर्स में ज्यादा होने के बावजूद हर जंग में हार जाते हैं। जिस पर उनके सारे जनरल्स ने एक ही जवाब दिया कि मुसलमानों की फौज का जो आर्मर होता है वो हमारी फौज से बहुत ही हल्का होता है, इसीलिए उनकी स्पीड हमेशा हमसे बहुत तेज होती है, और मुसलमान हमसे कभी एक जंग में नहीं लड़ते बल्कि हमेशा छोटे छोटे ग्रुप्स में लड़ते। तो रोमन बादशाह ये सब सुनकर अपने तख्त से खड़े हुए
और कहा कि अब इन सारी बातों का सिर्फ एक ही हल है, और अगर तुम मेरे जनरल्स हमेशा के लिए अरबों की गुलामी से बचना चाहते हो तो पूरी रोमन फौज को इधर अंताकिया में जमा होने का हुक्म। और साथ ही उसने अपने सारे सूबों के गवर्नर्स की तरफ लेटर्स भेजे कि जो भी नौजवान जंग करने के काबिल हो उसे चाहते या ना चाहते हुए रोमन एम्पायर की फौज में शामिल करके अंताकिया की तरफ भेजा जाए, जिसकी वजह से अंताकिया में रोमन एम्पायर की एक बहुत बड़ी फौज, लाखों की फौज जमा होने लगी। और इनका प्लान ये था कि अब मुसलमानों की इन छोटी छोटी ट्रिक्स से निकलकर आमने सामने होकर एक बहुत बड़ी जंग लड़ी जाए। अब जब ये सब कुछ यहाँ पे हो रहा तो वहां एमेसा में मुसलमानों के जनरल अबू उबैदा इब्न जर्राह रोमन बादशाह के हर मूव की खबर मिलती जा रही थी, जिससे वहां पर मुसलमान बहुत ही टेंशन में कि अब आखिर हम क्या करें, इतनी बड़ी फौज का मुकाबला कैसे करें, क्योंकि अब हर तरफ से रोमन एम्पायर मुसलमानों से बदला लेने के इनकी तरफ बढ़ रही थी। मुसलमानों की इस घबराहट को देखकर अबू उबैदा ने जल्दी से एक दूसरी मीटिंग बुलाई और अपने सारे जनरल्स को बुलाकर पूछा कि अब हमें इतनी बड़ी फौज के सामने क्या करना चाहिए, जिस पर सारे जनरल्स के मशवरे से यह फैसला किया गया कि हमें अमेसा, जिसे आज के जमाने में होम्स कहा जाता है, इस सिटी को बगैर किसी लड़ाई के छोड़कर यहां से वापस दमिश्क की तरफ जाना चाहिए, जिधर उस वक्त खालिद बिन वलीद अपनी फौज के साथ मौजूद। लेकिन जाने से पहले अबू उबैदा इब्न जर्राह इस सिटी के फाइनेंस मिनिस्टर को बुलाया और उसे ऑर्डर्स दिए कि यहां जितने लोगों से भी जिजिया टैक्स लिया गया था उन सब को वो पैसे वापस कर दिए जाए, क्योंकि ये जिजिया टैक्स हमने इनकी हिफाजत के लिए लिया था और अब जब हम इनकी और हिफाजत नहीं कर सकते तो इस टैक्स पर भी अब हमारा कोई हक नहीं है। तो इधर मुसलमान इस सिटी को छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे थे और वहां वो फाइनेंस मिनिस्टर अपनी टीम के साथ एमेसा के हर घर घर तक जाकर लोगों को उनके टैक्स के पैसे वापस दे रहा था। ये देखकर यहाँ के लोग अगेन हैरान रहकर कि आखिर ये क्या मखलूक है कि हम तो सिर्फ इस बात पर खुश थे कि इन्होंने हमारे इलाके फतह करने के बाद हमें नहीं मारा और हमारी औरतों को भी कुछ नहीं कहा और हमारी जमीनें भी नहीं छीनी, और अब इस सब के बाद भी ये हमसे लिया गया टैक्स भी वापस करके जा रहे हैं। इनमें से एक बंदे ने मुसलमानों के जनरल के पास आकर ये तक कहा कि खुदा आप लोगों को हमारे ऊपर दोबारा लाए। तो आखिर मुसलमान इस सिटी होम्स को छोड़कर यहाँ से दमिश्क की तरफ रवाना हुए, जहां खालिद बिन वलीद अपनी फौज के साथ इनका इंतजार कर रहे थे। दमिश्क पहुंचते ही दोबारा सारे जनरल्स की मीटिंग स्टार्ट हुई कि अब आगे हमें क्या करना चाहिए। अब जब ये मीटिंग चल ही रही कि अचानक एक मैसेंजर जॉर्डन उर्दन से अम्र इब्न आस का लेटर लेकर अबू उबैदा के पास पहुंचा, और इस लेटर में लिखा था कि रोमन एम्पायर की फौज की ताकत को देखकर सिर्फ जॉर्डन में नहीं बल्कि हर तरफ बहुत सारे क्रिश्चियंस बगावत कर रहे हैं। और अब जब उन्होंने ये भी देखा कि मुसलमान उस फौज के डर से एमेसा छोड़कर वापस आ चुके हैं तो उनका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ चुका है और हर तरफ इन बगावतों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो चुका है। अब मुसलमान दोनों तरफ से फंस चुके थे, मतलब इनके सामने रोमन एम्पायर की 2 लाख की फौज इनके तरफ बढ़ रही थी और इनके पीछे हर तरफ लोग बगावतें कर रहे थे। तो मुसलमान जनरल्स को समझ आ गई कि अब यहाँ दमिश्क में रहना बहुत ही डेंजरस काम है। लेकिन दमिश्क इतनी बड़ी सिटी थी, मतलब ये फैसला इन जनरल्स ने नहीं बल्कि मदीना में खलीफा उमर बिन खत्ताब और उनके मिनिस्टर्स अब्दुर्रहमान बिन औफ, उस्मान और अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने करना था। तो सिर्फ कुछ ही दिनों में डायरेक्ट मदीना से उमर बिन खत्ताब का लेटर दमिश्क पहुंचा, जिसमें लिखा था कि फैसला हो चुका है कि दमिश्क की इस सिटी को छोड़ दिया जाए, और सिर्फ दमिश्क को नहीं बल्कि पूरे शाम को छोड़ दिया जाए, और यहाँ से पीछे हटकर कोई ऐसी जगह जंग के लिए सेलेक्ट कर जिसकी लोकेशन ऐसी हो कि उसके पीठ के पीछे अरब का इलाका हो, ताकि पीछे से कोई बगावतें ना हो सके और हमारे सारे दुश्मन हमारी आंखों के सामने हो। तो फौरन हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के इस ऑर्डर पर काम शुरू हो गया और मुसलमान दमिश्क को छोड़कर पीछे हटे और जॉर्डन में अम्र इब्न आस की फौज की तरफ रवाना हुए। बट जाने से पहले यहाँ के सारे लोगों से भी जो टैक्स लिया गया था, अबू उबैदा ने वो टैक्स वापस करने का हुक्म दिया, और यहाँ के लोग भी हैरान हुए कि ये कौन लोग है आखिर मुसलमानों की ये फौज और आम्र इब्न आस की फौज यरमूक के दरिया के पास एक दूसरे के साथ मिल गई, और साथ ही शाम में मुसलमानों की जितनी भी फौज वो सारे भी आकर मुसलमानों की इस फौज के साथ शामिल हो, और ये सब रोमन एम्पायर की फौज का इंतजार करने लगे। वहां मदीना में भी हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके सारे मिनिस्टर्स बहुत टेंशन में थे कि अब इतनी बड़ी फौज का मुकाबला कैसे करेंगे, क्योंकि ये अब तक इस्लाम की तारीख की सबसे बड़ी जंग थी। तो उन्होंने इस फौज की मदद के लिए मदीना में इस फौज के लिए लोग जमा करना शुरू कर दिए। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने मस्जिद नबवी में सबको बुलाकर एक बहुत ही जबरदस्त स्पीच की, जिसमें सबसे पहले वो सहाबा भी सामने आए जो इस्लाम की पहली जंग बदर में भी शामिल थे, और अब उनकी एज भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन ये जंग इतनी खतरनाक कि जंग बदर के 100 सहाबा इस जंग में शामिल होने के लिए तैयार हुए।
मतलब जंगे बदर के 313 में से 100 साहब, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। तो ये बदरी साहबा भी बिल्कुल जंगे बदर की तरफ अब तलवार उठाकर जंगे यरमूक की तरफ जाने के लिए तैयार हुए। इन्हीं 100 साहबा को देखकर 1000 और साहबा भी इस जंग के लिए तैयार हुए, और इन 1000 साहबा को देखकर 5000 और मुसलमानों ने भी यरमूक की तरफ जाने का वादा किया। ये देखकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी इरादा किया कि वो खुद इस जंग को यरमूक में लीड करेंगे। लेकिन फिर बाकी सहाबा ने उन्हें समझाया कि ये जंग जीतना बहुत ही मुश्किल काम, और कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान ये जंग हार जाए और खलीफा को भी नुकसान पहुंचे, तो इससे इस्लाम को बहुत बड़ा नुकसान हो। तो आप इस जंग के लिए खुद मत जाए। जी तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, जो कि जंग यरमूक के हवाले से थी, कोहिस्तानी चैनल की। और इनका अंदाज़ जो है सबसे अच्छा लगता है कि ये अपनी बात को बहुत ही आसान अल्फाज में बयान करते हैं, और अल्फाज का चुनाव इनका बहुत अच्छा होता है, और ये बिल्कुल स्टार्ट से स्टोरी को कवर करते हैं ताकि इंसान को जो भी बात है वो शुरू से समझ आ सके। इसका हम एक पार्ट हमने आज कवर किया है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो इसका अगला पार्ट हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।